नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इस बार कई मायनों में खास रहा। इस बार उनके दौरे को लेकर भारत से लेकर अमेरिका तक एक अलग ही माहौल देखा गया। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान दोनों देशों के संबंधों में नई उड़ान देखने को मिली। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, माहौल मोदी में नजर आया। क्या कुछ खास रहा उनके अमेरिका दौरे में, अगले आधे घंटे में देखिए हमारी ये खास पेशकश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिका की संसद के दोनों सदनों, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वो पहले प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी संसद को करीब 1 घंटे तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया स्टोरी, विजन और रोड मैप को सामने रखा। I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. I am happy to help out. I am happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There will be and there must be a contest of ideas at home, but we must also come together as one when we speak for our nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस कैपिटल के विशाल प्रतिनिधि सभा चेंबर में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को कुछ इस अंदाज में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अतीत के प्रत्येक भारतीय प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति ने रिश्तों को आगे बढ़ाया है, लेकिन हमारी पीढ़ी को इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने दुनिया को एआई का नया मतलब बताया। A lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र से लेकर अर्थव्यवस्था तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र हमारे पवित्र और साझा मूल्यों में से एक है। Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में 2500 से ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हैं। विभिन्न राज्यों में करीब 20 अलग अलग पार्टियां शासन करती हैं। 22 आधिकारिक भाषाएं और हजारों बोलियां हैं, फिर भी हम एक स्वर में बोलते हैं।
2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. प्रधानमंत्री ने वैश्विक स्तर पर भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कहा कि यह जंग का दौर नहीं है, बल्कि यह संवाद और कूटनीति का युग है। हम सभी को रक्तपात और मानवीय पीड़ा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। Deeply disruptive developments with the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद अब भी पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। More than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेरा नहीं, ये भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. भाषण के आखिर में प्रधानमंत्री ने खुद की लिखी कविता पढ़ी।
इस दौरान जमकर तालियां गूंजती रहीं। आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। भाषण खत्म होने के बाद अमेरिकी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी ली। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की संयुक्त बैठक में प्रधानमंत्री का ये दूसरा संबोधन था। उन्होंने इससे पहले सितंबर 2016 में संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाई देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में लंबी बातचीत हुई। इसका मकसद रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी सहित भारत अमेरिका के सामरिक संबंधों को और गति प्रदान करना है। बैठक के बाद साझा बयान में दोनों नेताओं ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में नए युग की शुरुआत की है। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध खास अहमियत रखते हैं। द्विपक्षीय बातचीत के बाद लिए गए फैसलों से हमारे कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है, एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है, एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने फैसला लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपनी राय रखी। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। इस मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हम साथ मिलकर असीमित क्षमता वाले साझा भविष्य के दरवाजे खोल रहे हैं। परिवर्तन में तेजी लाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष उड़ान, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विषयों पर भारत अमेरिका सहयोग की जरूरत है। Trade between our countries has almost doubled over the past decade to more than $191 billion, supporting tens of thousands of good jobs in both India and the United States. Add to that, 1 million American jobs across 44 states will be supported by the purchase of more than 200 American-made Boeing aircraft by that Air India is announcing earlier this year. And with this visit, Indian firms are announcing more than $2 billion in new investments in manufacturing, solar in Colorado, steel in Ohio, and optic fiber in South Carolina, and much more. राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद दोनों देशों की तरफ से रक्षा, अंतरिक्ष, कारोबार और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी में सहयोग की जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, वे बदलते वैश्विक समीकरण को भी बता रही हैं। इनमें भारत में अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस की तरफ से युद्धक विमान का इंजन बनाने से लेकर माइक्रोन की तरफ से भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट लगाने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग तक की घोषणा शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर रखा। व्हाइट हाउस में आधिकारिक राजकीय रात्रि भोज के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर खुलकर बात की। व्हाइट हाउस में डिनर के मौके पर प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बयानों ने पूरी महफिल में हंसी और तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान व्हाइट हाउस से जो दृश्य सामने आए वो पहले शायद ही कभी देखने को मिले हों। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने आभार जताते हुए कहा कि व्हाइट हाउस में हुआ शानदार स्वागत समारोह एक प्रकार से भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। शानदार रात्रि भोज के आयोजन के लिए मैं प्रेसिडेंट बाइडेन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं डॉक्टर जिल बाइडेन का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने मेरी यात्रा को सफल बनाने के लिए निजी रूप से इतना ध्यान दिया, इतने प्रयास किए। आज के भव्य आयोजन के लिए मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के समाज और व्यवस्थाएं लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। दोनों देशों के संविधान उनके पहले 3 शब्द वी द पीपल से संचालित होते हैं और हम दोनों देश अपनी विविधता पर गर्व करते हैं। यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते हैं लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने संबोधन में कहा कि कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक बहुलवाद हमारे लोगों की विविधता का मूल सिद्धांत है।
As two great democracies, in the bustle of our work, India and the United States hear the cry and the call of destiny to take our nations and the world forward to a future worthy of our dreams, a future of greater prosperity, opportunity, liberty, equality for all, and for the good of the world. प्रधानमंत्री के आधिकारिक स्वागत का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय बूंदाबांदी के बीच व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में जमा हुए। ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस के दरवाजे इतनी बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए खोले गए हैं। और अब बात एक ऐसी मुलाकात की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। अमेरिका के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई हस्तियों से मुलाकात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एलन मस्क की मुलाकात की हो रही है। क्यों और कैसे ये मुलाकात रही खास, कैसे निवेश के लिहाज से इस बैठक के खास मायने निकाले जा रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। I am a fan of Modi, so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग की फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया और ये नाम है दुनिया के सबसे बड़े रईस इलॉन मस्क का। अमेरिका की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इलॉन मस्क की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद मस्क ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत की तारीफ की। ट्विटर के सीईओ और टेस्ला के प्रमुख इलॉन मस्क ने भारत को संभावनाओं से भरा देश करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि मैं मोदी का फैन हूं। उनके साथ मीटिंग शानदार रही। मैं भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित हूं। मुझे लगता है कि भारत के पास दुनिया के किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में ज्यादा संभावनाएं हैं। मोदी वास्तव में भारत की चिंता करते हैं। वह हमें भारत में बड़ा निवेश करने के लिए बुला रहे हैं। हम भी भारत में बड़ा निवेश करना चाहते हैं। वो भारत के लिए टेक्नोलॉजी का फायदा चाहते हैं। भारत में खासकर सोलर एनर्जी की बहुत संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत वैश्विक विनिर्माण के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। कई दिग्गज अमेरिकी कंपनियां अब भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने पर ध्यान दे रही हैं। इस कड़ी में एप्पल, गूगल के बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला का नाम जुड़ने वाला है। टेस्ला के सीईओ ने कहा कि उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी भारत में जल्द से जल्द निवेश करने के मौके तलाश रही है। एलन मस्क ने भी अपने एक बयान में कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि टेस्ला भारत आएगी और हम जल्द से जल्द ऐसा करेंगे। निवेश के लिहाज से भारत अब एक परफेक्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। एप्पल के आईफोन समेत कई डिवाइसेस अब बड़े पैमाने पर भारत में बन रहे हैं। फॉक्सकॉन, विट्रॉन जैसी ताइवानी कंपनियां भारत में विनिर्माण कर रही हैं और लगातार क्षमताएं बढ़ा रही हैं। भारत में अमेरिकी निवेश लाने के लिए प्रधानमंत्री के दौरे की टाइमिंग इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। इसके पीछे वजह भी है। धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था के बीच भारत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और यही कारण है कि सबकी निगाहें अब भारत की तरफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में योग उत्सव में शामिल हुए। अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के कार्यक्रम का उन्होंने नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग कार्यक्रम में कहा कि योग का मतलब है यूनाइट करना, यानी साथ लाना। प्रधानमंत्री ने योग को जीवन जीने की कला बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत की पुरानी संस्कृति है और इस पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। योग कार्यक्रम यूएन के नॉर्थ लॉन के गार्डन में हुआ। प्रधानमंत्री के साथ तमाम बड़ी हस्तियां और कई देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहते हैं इतिहास तारीखों में लिखा जाता है, लेकिन कई तारीखें ऐसी होती हैं जो इतिहास लिख जाती हैं। ऐसी ही तारीख 21 जून 2023 है। आज पूरी दुनिया भारत के योग मंत्र के साथ योगमय नजर आई। ये तस्वीरें संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की हैं। कहने के लिए यह कहा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन सही मायनों में ये तस्वीरें एक वैश्विक अभियान के
उत्कर्ष की है। भारत की सदियों पुरानी योग की ताकत को सबने अपनाया। अमेरिका की धरती से पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के महान विचार की साक्षी बनी। Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each others. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. भारत ने योग का उपहार दिया तो पूरी दुनिया ने खुले दिल से उसे स्वीकार किया। आज भारत के योग पथ पर पूरी दुनिया चल रही है। योग दुनिया को जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत से आया है, यह भारत की परंपरा से जुड़ा है, यह पूरी दुनिया के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. Yoga comes from India and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work or in transit. Yoga is flexible. Yoga is truly universal. प्रधानमंत्री ने कहा कि योग में वो ताकत है जो पूरी दुनिया में बदलाव ला सकती है। शारीरिक सामर्थ्य, मानसिक क्षमता, चेतना शक्ति और सामूहिक ऊर्जा को जीवन का आधार बनाने में योग की शक्ति काम आ सकती है। When we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. यह भारत के योग की ही ताकत है कि दुनिया के कोने कोने तक आज योग का जय घोष है। विश्व का हर नागरिक योग को अपना मानने लगा है। योग आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक है। सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि जैसे जैसे सूरज की किरणें पहुंची, प्रकाश का विस्तार हुआ, दुनिया के हर हिस्से में लोग योग से सूर्य का स्वागत कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।